I would like to invite you, at least give some time, and please raise whatever questions you are having and all, she is here to answer all your questions. अच्छा, एक क्वेश्चन है, बहुत बच्चे पूछे हैं मेरे को, आज भी पूछ रहे थे, ये जो क्वेश्चन आंसर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट डिफरेंशिएशन बिटवीन टू differentiate between east and west coastal plain or peninsular and the Himalayan river system. Some students, they have written like, in a paragraph from, some of them in left and right two types. What is your experience on this? I think difference वाले question में tabular formats work, even if it is geography or history का question, say western and eastern hemisphere. If we make 3 columns, say bases, then western hemisphere, western coastal plain, then eastern coastal plain. The first is the length. So हमारा mind ही खुद structure frame में सोचने लग जाता है अगर हम tabular format बनाते हैं तो. So I think I followed that. In history also there was one question, the Gandhian school and the Rabindranath Tagore का school. So I think tabular formats में हमारा thinking जो है वो structured way में होती है. So yeah, so I followed that. Thank you very much. So now I'll again invite you with in a lot of I can say happiness, and in behalf of Khan Study Group, I'm again congratulating you. I hope that definitely you'll be a good administrator. God bless you. Thank you very much, please. First of all, my name is Deepthi Rohila, rank 39, and this was my second attempt. I had geography optional in which I have secured 323, and yeah, that's about my journey. And now I'm here to take your questions, and feel free to ask any questions, mental health related, content related, how do you handle the D-Day, the anxiety that we have. So I'm open to any questions that you have. Yes, anyone? Yeah. So prelims में number कमाने का there are various reasons, and अगर आप 90 plus करके you are scoring less, which means you are the 70 questions type person. If I give my example, मैंने इस साल prelims में 68 या 69 questions attempt किए थे, which I evaluated by giving the mock test कि 90 plus करने से मेरे marks कम हो रहे हैं, so why not give 70. अब 70 वाले जो students हैं that they qualify, they are very less. But that's what is suiting me, right? So I think you know yourself, 90 वाला नहीं कर रहा है तो try to give less. So I think experiment, know yourself. और दूसरा भी हो सकता है कि आप क्यों गलत हो रहा है, right? 4-5 पेपर के if you make the matrix mean why the question is getting wrong. First, which you have read and that is wrong, तो पहला revision की कमी है. सेकेंड जो आता ही नहीं था, राइट, वी डोंट नो, विच मीन सोर्सेज हमें डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे. थर्ड इज सिली मिस्टेक, इनकरेक्ट करेक्ट वाले, ए बी वाले. सो मेक दिस मैट्रिक्स फॉर 5-6 पेपर्स. तो एक पैटर्न समझ आएगा कि रिविजन में कमी है या उस समय फोकस की कमी है तो रीडिंग ढंग से नहीं हो पा रही. ओके ओके, एनीवन एल्स? सब सॉर्टेड है. Okay, so timetable varied पूरे साल का. So initially I picked up main specific चीज़ें और जो prelims में भी they are matching. कुछ months उसमें जाएंगे. Then CSAT obviously उसको कुछ dedicated time देना पड़ेगा because of the changing nature and the toughness of the paper. अगर मैं एक दिन के timetable की बात करूँ तो initially I start with newspaper reading, must. I mean I cannot emphasize this more. मेरे last year the score in geography optional is 219 and this year it is 323, which is a jump of around 104 marks. उसका major contribution is newspaper reading, right? So if I give an example, थोड़ा सा digress कर रही हूँ आपके topic से, तो newspaper reading, how do we do newspaper reading? Because it's not just passively आपने read कर लिया. There was a topic of say Manipur conflict is in news, too much in news जब मैं mains दे रही थी. अभी कहाँ कहाँ टॉपिक फिट हो सकता है? women related issues में, स्टेट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में. अब ये आएगा जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लिंकेजेस आर सेट. तो मेरा वन नोट में देयर वाज टैब GS 1 2 3 4 और सिलेबस के पॉइंटर्स लिखे हुए हैं. नाउ आई हैव रिटन, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर. अब ये कहाँ फिट हो रहा है? तो रादर देन टेकिंग इट एज अ बर्डन, मैंने थोड़ा इसको गेमिफाई कर दिया कि ओके दिस आई कैन लिंक हेयर, दिस लिंक. तो लिंकेज बहुत अच्छी बन जाएगी. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग.
देन कोई एक सब्जेक्ट जो हैवी लिफ्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड करता है, क्योंकि शुरू में आई थिंक मॉर्निंग में हमारे पास सबके पास एनर्जी होती है, राइट, हम खाना पीना खा के बैठे ही होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट एनर्जी ले रहा है, आई मीन बाइलिंगुअल सबके लिए ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको? तो शुरू वाले 3-4 आवर्स में सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग वाले सब्जेक्ट, अब हम थक चुके हैं, अब हम दूसरा हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमें लंच भी लिया हुआ है, तो अब हम ब्रेक नहीं लेंगे, हम ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जिसमें कम फोकस चाहिए, वो आपका अपना सब्जेक्टिव हो सकता है। मेरे लिए था ज्योग्राफी इन्वायरमेंट रिलेटेड में, आई कैन हैंडल विथ लेस फोकस ऑल्सो, तो वो वाला सब्जेक्ट हो गया। अब एक कॉफ़ी ले ली तो अब फिर से एनर्जी बढ़ गई है, तो अब कोई हैवी लिफ्टिंग अगेन, और फिर रात में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। दिस इज जनरल 1 साल का। अब प्रीलिम्स पास आएगा तो अकॉर्डिंग टू द टाइम 9:30 से 11:30 वाले में आई विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस, राइट। तो सिर्फ पढ़ना ही इज नॉट द वे टू क्लियर, आई मीन सिर्फ पढ़ाई होके दिस एग्जाम कांट बी क्लियर्ड, देयर आर वेरियस निटिग्रिटीज, से स्लीप हो गया, फूड हो गया, और सोशल इंटरेक्शन हो गई, सो यू हैव टू कीप ऑल थिंग्स इन चेक। मेरा ऐसा था कि अगर व्हाट डू यू कॉल इट, स्लीप साइकिल कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, येस वी ऑल आर एंग्शियस, सो आई फॉलोड NSDR टेक्निक। NSDR is non-sleep depressed. It is a technique by Andrew Huberman. You can search on YouTube. And ये 10-15 minutes की audio है, and you sleep. You just listen it. I mean, you can try it. It's very effective. मेरे लिए तो काम किया है. Because after my first mains failure, it was shattering. मतलब nobody likes failure, like, and coming from elite institution and all that, वो सब एक baggage था identity की, why have I failed, why me and all that. तो उसमें sleep, I mean, it gets compromised. So I think this followed, I mean I followed NSDR जिससे कि I could be focused in my studies. So that you can follow. And another thing I would say कि food. I mean during the GS1 का जो पेपर होता है, GS2 the CSAT1, उसमें 3 hours का गैप होता है, which is a lot, right? तो उसमें how do we keep focused, या हमेशा क्या खाएं? So again I have devised कि ज़्यादा रोटी खाने से I feel lousy, तो I'll have few चावल, I'll have lemon soda or something. ये बहुत छोटा वो लग रहा है आपको डिटेल्स कि आई मीन why to get into, हम कुछ भी खा लेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। पूरा अपना प्रॉपर सिमुलेशन करके प्लान कीजिए। और थर्डली आई वुड से कि गेट इन द ग्रूव बिफोर द एग्जामिनेशन हैज स्टार्टेड। अब CSAT होने वाला है, आई मीन ऑब्वियसली इट हैज़ बिकम यू नो वेरी क्रूशियल स्टेज, जो पीपल आर यू नो नॉट एबल टू क्वालिफाई। तो उसमें व्हाट आई डिड कि एग्जाम स्टार्ट होने से 15 मिनट्स पहले आई यूज्ड टू सॉल्व सम्स 323 into 126, कुछ ऐसे ही रैंडम कुछ भी, मैंने एक दिन पहले आई मेड द शीट, जिससे कि आई एम इन द ग्रूव। और अगर इससे 1-2 क्वेश्चन भी 1-2 मिनट भी सेव हो रहे हैं, या मैं 1 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर पा रही हूँ CSAT में, या 2 क्वेश्चन भी, 2 क्वेश्चन इन CSAT मीन्स 5 मार्क्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो आई थिंक दिस आई फॉलोड। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट यू शुड बी गिविंग अटेंशन टू द डिटेल्स apart from the studies are important of course, but how are you as a person and how it is aligning with the preparation that you need to focus on. And anybody else? Yeah, so I did geography honors from Miranda House, so I had the background, so I thought कि it should be good. I mean I had the 3 साल पढ़ाई करी है, तो why not. तो मैंने लिया तो स्कोर वॉज 219। आई वॉज वेरी डिजेक्टेड, मतलब इतने साल पढ़ाई करी है, देन अगेन द स्कोर इज नॉट कमिंग। सो डोंट हैव दिस इनहिबिशंस की बैकग्राउंड है तो मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे या ऐसा कुछ। यू हैव टू बी डिवोटेड टू द सब्जेक्ट, एंड आई थिंक इंटरेस्ट ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू, I mean optional demands lot of attention from you, yes, because optional can make or you know break your game. मेरे 323 आया, that's why I have received this rank. So ऐसे ethics and optional very crucial. Optional पे अगर disproportionate high amount of time अगर हम दे रहे हैं, so it is justified. I'm not the right person, but me and Ananya, third rank, we were batchmates. मतलब class में we studied together, and she had anthro optional, I had geography. So it can happen, and she has also gotten good score. So I think I'll not be able to answer, but it can happen also, and you can clear with that also approach. अभी तक क्या? For, can you be louder? अच्छा 2025 के लिए आई थिंक राइट नाउ यू शुड बी फोकस ऑन द मेंस नोट्स,
और जो टॉपिक डिमांड करते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी, से पॉलिटी इकोनॉमी यू कैन स्टडी नाउ, बट हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट और मैपिंग एज अ सब्जेक्ट दैट यू कैन डू लेटर ऑल्सो बिकॉज इट रिक्वायर्स मेमरी. So I would say that now focus on your optional mains and prelims का I mean 2 hours और say 1 hour daily जैसा भी आपका time devote हो पा रहा है, but after January end, that is 4 months, February, March, April, May, that you should devote only to prelims because I mean prelims is the most dreadful stage, right? Because it has become random, uncertain, whatever, but there is a method to this madness, and I think 4 months will be sufficient enough to cover that. Yeah. Yes. So there are people who read one subject at a stretch पूरे दिन. I was not that kind of person because after say 5 hours, okay, we can stretch, but उसके बाद we are studying, but not that productive, right? So my approach was I will take I will take 3 subjects. So current affairs को भी I have given कि I mean so the thing is high focus subjects, less focus subject than high focus subject. High focus अब वो मेरे हिसाब से होगा, मुझे पॉलिटी में ज़्यादा टाइम लगता था, किसी के लिए वो लेस फोकस सब्जेक्ट है. सो आइडेंटिफाई कौन सा आप आसानी से कर पा रहे हैं, कौन से में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मिक्स एंड मैच, और वो बिल्कुल रैंडम भी हो सकता है. आई रिमेंबर आई स्टडीड IR में मेरे को इंटरेस्ट है और मेरे को सपोज व्हाट डू कॉल इट हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इन दोनों को साथ पढ़ लूँगी. सुबह आई विल गिव इट टू हिस्ट्री एंड देन एक स्लॉट होगा लेस फोकस वाला जिसमें मैं IR पढ़ूंगी. तो जो हिस्ट्री भी है वो फटाफट हो जाएगा क्योंकि हमें तो IR पढ़ना है ना. या So yes, the time between prelims and mains is very crucial. I think every day matters. और उसमें मेरा टाइम ये रहता था कि ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम देना, एस्से को वीकेंड्स पे लिखना, और डेली कोई 2 सब्जेक्ट GS के साथ लेने, और करंट अफेयर्स तो डेली रिवाइज होता था. तो एज अ सेड कि व्हाट आई डिड कि मैंने गोल नहीं बनाया कि मेरे को ये टॉपिक्स करने हैं, मैंने सिस्टम बना लिया. फर्स्ट सिस्टम कि 8 बजे आई शुड बी ऑन द स्टडी टेबल, 8 से 9 आई रीड करंट अफेयर्स. अब कभी कभी ऐसा हो कि न्यूज़पेपर 30 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, राइट? सो अब हाफ एन आवर में क्या, हाफ एन आवर में अगले दिन की रिविजन, बट 1 घंटा दिस इज माई सिस्टम कि सुबह उठते ही मेरे को करंट अफेयर्स करना है. देन एक हाई फोकस सब्जेक्ट, लेस फोकस, हाई फोकस, प्रैक्टिस, ये सिस्टम बन गया. अगर आप ऐसा करोगे ना कि न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो कभी भी नहीं होगी क्योंकि हमें तो स्टैटिक भी करना है, हमें तो टेस्ट भी सॉल्व करने हैं. तो एक सिस्टम बना लिया कि अच्छा दिस डन. या सो फर्स्ट थिंग PYQ टॉपिक वाइज हमने सॉल्व करने हैं. एक चैनल है टेलीग्राम पे घनश्याम गौतम सर का, उन्होंने टॉपिक वाइज कंपाइल किए हुए हैं जितने भी PYQs है. सो सॉल्व दैट. कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा कि अच्छा इसमें ये लग रहा है, दैट इज़ वन पार्ट. अब नेक्स्ट ईयर हो सकता है एक लेवल अप हो जाए क्वेश्चंस का. सो आई फॉलोड अरिहंत बुक फॉर द CSAT पार्ट. उसमें थोड़े ज़्यादा ही टफ क्वेश्चंस भी हैं, बट एक लेवल ऊपर जाके तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं. सो दैट इज़ वन. थर्ड आई थिंक कि आप कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे हैं कि मैथ्स में, फाइंड दैट. और जैसे मैं बताऊं तो मेरे कॉम्प्रिहेंशन 32 है, तो 30 करेक्ट होने चाहिए. आई हैड दिस थिंग क्योंकि फिर तो क्लियर ही नहीं होगी कट ऑफ. थर्ड इज CSAT में द डे ऑफ द एग्जामिनेशन मैटर्स. अगेन गेट इन द ग्रूव और फाइट करना है एंड मिनट तक, क्योंकि मेरे को पता है कि लास्ट मिनट में जब बेल इट रैंग तो मैंने बस मैम से बोला था मैम प्लीज़ वन मोर क्वेश्चन एंड 2.5 डन. सो लास्ट मिनट तक यू हैव टू फाइट. या एनीबडी एल्स? या अभी डन? हाँ जी. ओके, एथिक्स पार्ट के लिए आई फॉलोड स्टैटिक कंपोनेंट के लिए फोरम की रेड बुक. देन आई मेड एग्जाम्पल्स, कोर्स, केस स्टडी बाय रेफरिंग टू द टॉपर कॉपीज. मतलब आई रेफर टू श्रुति शर्मा मैम आंसर्स, शी हैज़ द हाइएस्ट मार्क्स आई थिंक, एंड उन्होंने काफ़ी चीज़ें रिपीट करी हुई है. गांधी जी, सर्वोदय एंड अंत्योदय कॉन्सेप्ट, ये हर जगह मतलब होगा ही ये यूज़ कहीं ना कहीं कंक्लूजन में. तो ऐसे फ्रेमवर्क बना लिए. द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स. अब ये भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा. तो ऐसे टेम्पलेट बना लिए कि ओके दिस कैन बी यूज्ड इन कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में कुछ एग्जाम्पल आएगा, बट एग्जाम्पल भी कीवर्ड के साथ आएगा. से महेंद्र सिंह धोनी एंड पेशेंस.
अब हमने एग्जाम्पल भी दे दिया और बता भी दिया कि ये एथिक्स का वो है, आंसर है ये एथिक्स का। और सेकेंड आई वुड से केस स्टडी। केस स्टडी में ऑलवेज ट्राई टू गिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। अब प्रैक्टिकल माने क्या, जैसे अगेन मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट वॉज इन न्यूज़ एंड देयर वाज ए आर्टिकल कॉल्ड कि वी हैव यूज बफर जोन क्रिएशन स्ट्रैटेजी। हमने ऐसा कुछ नहीं बोला कि वील हैव लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। हाउ मतलब कैसे करोगे, लॉ एंड ऑर्डर इज जस्ट वन थिंग, हाउ डू यू डू दिस। तो एक कीवर्ड यूज किया मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और उसको एक स्टेप के साथ लिंक कर दिया बाय बफर जोन क्रिएशन। अब अकाउंटेबिलिटी बहुत आंसर्स में यूज होती है कि वी हैव टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी। अब ये आंसर बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आपने हवा में बोल दिया अकाउंटेबिलिटी। हाउ अकाउंटेबिलिटी बाय शोइंग प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन वेबसाइट ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट। अब ये बता रहे हैं कि आप स्टेप भी दे रहे हो और आप एथिक्स का आंसर भी दे रहे हो। या आर यू गेटिंग? या दैट्स इट। एनीबडी एल्स? यस, I can't hear you. Additional books, you mean to say standard books का role? I think very important because see coaching notes can give you the idea कि this is the subject is all about, but basic books से ही the questions are being asked, but there is also a way to refer to basic books क्योंकि I talk about my revision strategy. So geography की NCERT हमने ले ली है ना, फर्स्ट रीडिंग में हमने गो थ्रू किया और हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर दिया येलो से। अब नेक्स्ट टाइम हमने पढ़ा और कौन सी चीज़ हमें येलो वाले से जो हाईलाइटेड है उससे याद नहीं हुई तो उसको रेड से हाईलाइट कर दिया। थर्ड रिवीजन में भी सी कि रेड वाला था कंपोनेंट, ये हमें बिल्कुल ही याद नहीं था, येलो वाला तो वी नो। अब तो रेड वाले में से भी कौन सा सेकेंड टाइम नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम उसको ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। अब एक दिन पहले मेरा ज्योग्राफी का टेस्ट है, व्हाट शुड आई रीड, बुक्स तो पूरी भरी हुई है तो अब मैं ग्रीन वाला पार्ट जल्दी से पढ़ लूँगी क्योंकि येलो और रेड वाला मैंने पहले 2-3 बार कवर करा हुआ है, राइट। तो बेसिक बुक्स के लिए भी फोकस, क्योंकि अब हम खो भी जाते हैं बेसिक बुक्स में कभी कभी, राइट। तो दिस इज़ अबाउट बेसिक बुक्स। और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको थोड़ा और यू नीड टू रिसर्च मोर और इंटरलिंक, जैसे कि तमिलनाडु NCERT फॉर आई थिंक हिस्ट्री के लिए एंशिएंट एंड मिडीवल आई रेफर्ड विच इज़ रियली अ गुड बुक, बट इट रिक्वायर्स यू टू इंटरलिंक बिटवीन द टॉपिक्स और उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड। दिस ईयर जब मैंने पेपर उठाया तो मेरा सेट बी था शायद और उसमें स्टार्टिंग में हिस्ट्री क्वेश्चंस थे एंड आई फाइंड मैंने इतना वर्क किया था हिस्ट्री पे दैट इट सीम ईजी फॉर मी। तो मेरे को लगा कि पेपर तो बड़ा ईजी है, आगे देखा कि थोड़े पेयर क्वेश्चंस हैं तो आई थॉट ओके, देन पूरा ही पेपर पेयर बेस्ड था। तो देन इट कम्स द रोल ऑफ माइंड सेट, आई मीन हाउ डू यू टैकल दैट डेका एंड you should have the fighting spirit. I mean it's doable. I mean I can do this in the room. I can clear this exam. So prelims में since very few days are left, anybody giving this year prelims? Okay, so I will say कि अभी तो you should not read newspaper and get in the groove of solving MCQs और उसका एक knack develop करना and CSAT पे focus करना. Yeah, that's it. See, कभी कभी टाइम क्रंच होता है, वी आर नॉट एबल टू राइट बट आंसर फ्रेम तो कर ही सकते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज, अगर कोई PYQ है एंड उसमें हमने फ्रेमिंग कर ली कि आई राइट दीज टॉपिक्स, मेंटली एक वर्ड्स लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया। सो व्हाट आई मीन कि आपके फ्रेमवर्क्स पहले से सेट होने चाहिए। आई हैड द फ्रेमवर्क कॉल्ड लॉ भाई फॉर कोई भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आएगा आई यूज लॉ भाई। L इज लैंड, A इज एयर, W इज वाटर, B बायोडाइवर्सिटी, H हजार्ड एंड I इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब मैंने कुछ नहीं पढ़ा डिफॉरेस्टेशन में बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा। फर्स्ट इम्पैक्ट लैंड, सॉइल इरोजन, एयर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वाटर में ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, अर्बन फ्लड्स, देन बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हजार्ड में अगेन फॉरेस्ट फायर, अर्बन फ्लड्स, देन इंडिविजुअल, इकोनॉमिक, जो लोग एग्रो फॉरेस्ट्री पे डिपेंडेंट है उनके लाइवलीहुड हैम्पर हो जाएंगे, सोशल, जो ट्राइबल सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं दैट विल बी हैम्पर्ड, देन पॉलिटिकल में ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर इफ़ यू सी। हमने इसको सिर्फ इन्वायरमेंट लेंस से नहीं देखा कि सिर्फ लैंड एयर वाटर नहीं, इंडिविजुअल फैक्टर्स भी, मतलब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल तक हम इसको स्ट्रेच कर दिया। तो आई वुड से कि आंसर राइटिंग में जब आप कर रहे हैं तो ट्राई टू मेक फ्रेमवर्क्स कि आप इस एंगल पे सोचेंगे। अब कोई भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, मैंने इस फ्रेमवर्क में फिट करना है, सो मेरा टास्क होता था कि फ्रेमवर्क्स बनाने और कोई भी आंसर आ जाएगा वो इसमें फिट हो जाएगा अपने आप। या दैट्स इट।
अगेन एज आई सेड कि रिविजन आज अगर 3 आवर्स लग रहे हैं से अगर हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, आज मैंने 1 चैप्टर किया, नेक्स्ट डे आई रीड सेकेंड ऑल्सो +1, तो वो कम टाइम में होगा। अगर आज 1 घंटा लगा तो कल आधा घंटा लगेगा, प्लस सेकेंड वाले को तो जो लगेगा लगेगा। अब नेक्स्ट डे चैप्टर 1, 2 and 3 न्यू, नेक्स्ट डे चैप्टर 1 to 3 ओल्ड, 4 न्यू। तो आई थिंक ऐसे करके इट बिकम्स रियली ईजी। अब शुरू में एफर्ट लगेगा कि ये तो कल ही पढ़ा है ना चैप्टर 1, तो अपने आप को थोड़ा समझाओ कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल क्यूमुलेटिवली वो आपका इम्पैक्ट दिखेगा। या एस्से राइटिंग आई वुड से कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी वेरी सॉलिड, स्टोरी से स्टार्ट करना और कंक्लूजन में कोई पोएम या ऐसे कुछ ऐड कर देना, एंड कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करना, डायलॉग फॉर्मेट में लिखना। जैसे आई हैव रिटन कोई कंपोनेंट, फिर मैंने लिखा नाउ लेट्स क्वेश्चन दिस, तो ऐसा होगा ना कि आई एम कन्वर्सिंग विद द एग्जामिनर, सो दैट हेल्प्स। एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, मतलब कुछ भी नहीं उठा देना। पोएट्स आर अनहर्ड लेजिस्लेचर, ऐसा कुछ आया था, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या कहना चाह रहे, तो आई डिड नॉट टेक दिस। मैंने एजुकेशन वाला टॉपिक ले लिया, तो जो समझ आ रहा है उस पर लिख सकते हो, चूज दैट टॉपिक। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हमें पता नहीं है क्या गलत हुआ है, मार्कशीट्स आई नहीं होती, वी हैव बीन जस्ट टोल्ड कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं है, विच इज़ वेरी डॉन्टिंग। फॉर द फर्स्ट वीक आई कुडंट अंडरस्टैंड कि क्या हो गया है, एंड आई मीन डिस्पाइट नॉट लीविंग एनी क्वेश्चन इन द मेन्स, हाउ कैन आई फेल? आई हैव डन वॉट एवर आई कुड। बट थोड़ा सा अगर हम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचें ना, हमें लगता है कि वी हैव डन अ लॉट, अब तो पता ही नहीं, सम लक इज़ देयर, हम कुछ भी फैक्टर्स को ब्लेम करने लग जाते हैं कि एग्जामिनर वॉज बैड, तो मेरा फोकस नहीं रहा, मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया। बट अगर हम थोड़ा ऑनेस्ट होकर पीछे से सोचे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, कि दिस इज द पर्सन, ओके दिस ऑल शी डिड, मतलब जो मैंने एनालिसिस किया, बट शी कुडंट डू दिस। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो कि हमने कुछ गलती करी है, या वी वर नॉट ऑनेस्ट, या हमने उसको इन अ फ्लूक हमने उसको कर दिया। बट इसमें कुछ भी फ्लूक से नहीं होगा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैपिंग को इतना फोकस नहीं दिया था, क्योंकि मैपिंग तो हम्पी कोई पूछेगा तो आई कैन मार्क, गुड़गांव कोई पूछेगा, जयपुर है तो आती है ना। बट अब आई वॉज नॉट ऑनेस्ट, सारी बुक आई हैव टू रेफर। अब हम्पी आती है तो आसपास के बिलेरी, चित्रदुर्ग एंड ऑल दॉट प्लेसेस ऑल्सो आई शुड नो, तो मतलब मैंने अपना एफर्ट नहीं डाला। एंड इट रिक्वायर्स करेज, मतलब आई वुड से कि हर चीज़ का जो आंसर है ना वो मेंटल स्टेट से रिलेटेड है। अगर हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं, वाई आर वी नॉट गिविंग टेस्ट? बिकॉज वी आर अफ्रेड। अफ्रेड क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव द करेज, अगेन अ मेंटल कॉम्पोनेंट। अब हम उस समय में जब हम अपना पेपर दे रहे हैं, उस समय हम अपना वाई आर वी नॉट एबल टू कीप आर काम? बिकॉज अगेन वी आर अफ्रेड, वी डोंट हैव द करेज। सो डू द एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन दैट बिल्ड्स योर करेज, राइट? पीपल, आई हैव हर्ड वन एस्पिरेंट सेड कि मैं जब पुशअप करता था तो मेरे को हो जाता था क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि उससे आपको लगता है कि यू आर somebody apart from the examination, my worth is not attached to this examination, I am somebody apart from that also and I am good enough. So do that activity जो आपका मेंटल बैरियर को काम करे, क्योंकि मैंने बताया ना, जब समय कम है और पेपर ऐसा आ गया रैंडमली, तब जो काम आएगा वो यही है, मेंटल स्टेट। या